وزیر اعظم شہباز شریف نے 14 IPPs کے منافع اور لاگت میں 802 ارب روپے کی کمی کی تجویز منظور کر لی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ان IPPs کے ساتھ نظرثانی شدہ معاہدوں کی منظوری دے دی۔ فیصلے سے حکومت کو 1 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے سرکاری کمپنیز کو کیپیسٹی پیمنٹ دیے جانے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈالرز میں ادائیگی یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بڑی کمپنی سے کیپیسٹی چارجز پر بات کر رہے ہیں، امید ہے بجلی جلد سستی کروا لیں گے۔ دوسری جانب کابینہ کمیٹی اجلاس میں شہباز شریف نے خصوصی صنعتی زونز اور صنعتی اسٹیٹس کو بجلی فراہمی کے نئے نظام کی منظوری دے دی۔ نئے نظام کے تحت انتظامیہ کو خود کنیکشن دینے، بل جمع کرنے اور دیگر امور نمٹانے کی اجازت ہوگی۔ ادھر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اڑان پاکستان منصوبے سے ملک بھر میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان خاص رشتے کو جھوٹے بیانیے کی خلیج ختم نہیں کر سکتی۔ جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن غلطی نہ ماننا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیز کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ افغانستان سے اختلاف صرف فتنہ الخوارج کی موجودگی اور وہاں سے دہشت گردی پر ہے۔ جب تک افغان حکومت دہشت گردی کا مسئلہ دور نہیں کرتی، ان سے اختلاف رہے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ PTI کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے، لیکن 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی شخص کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل نے کہا کہ ان پر 9 مئی کے واقعات سمیت تمام مقدمات جھوٹے ہیں۔ ان پر ATM مشین، ہونڈا 125 اور کمبل چوری کے کیسز بھی بنائے گئے۔ حکومت بالکل مذاکرات کر رہی ہے اور پاکستان کی خاطر، پاکستانی قوم کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر مذاکرات کر رہی ہے اور بالکل امپاورڈ ہے اور بااختیار حکومت ہے، بااختیار کمیٹی ہے۔ جو 9 مئی میں ملوث ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی بھی 9 مئی میں ملوث ہیں؟ جو 9 مئی میں ملوث ہیں، اچھا 9 مئی میں جو ملوث ہیں وہ بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیجیے، آپ 9 مئی کا تو کمیشن نہیں بننا۔ جس طرح کے مذاکرہ خیز قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر تو پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایکس رے مشین چوری کی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی مجھے ہڈیوں میں کچھ زیادہ ہی درد ہوگا۔ آپ نے بھی ATM مشین؟ جی میں نے ATM مشین توڑ کے اس کے اندر سے پیسے نکال لیے، پھر گائے بھی اپنا کار کی ڈگی میں میں نے رجحان کے علاقے سے چوری کر لی۔ میر صاحب میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہاں پہ آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے 26 نومبر کو میرے اوپر الزام لگایا FIR کے اندر کہ میں نے پولیس وین سے کوئی کمبل چوری کیے، بسترے چوری کیے اور ہونڈا 125 چوری کی۔ اچھا ابھی اپنے کارناموں پہ ہنس رہے ہیں، میں عقیل صاحب کیا کروں۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی اٹلانٹک کونسل میں تقریر کے دوران فلسطین کے حق میں نعرے لگ گئے۔ احتجاج کرنے والوں نے اینٹونی بلنکن کو جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا۔ پولیس نے احتجاج کرنے والوں کو ہال سے باہر نکال دیا۔ These are the goals that I've worked to advance over a dozen trips to the region since October 7th. How do you murder grandchildren? Oh, thousands and thousands and thousands. How do you break American law? How do you do all that and then sit here and tell these people, civilized people, that you... بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہوئے تو PTI کی اگلی حکمت عملی وقت آنے پر سامنے لائی جائے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے فیصل چودھری نے ججز کے حوالے سے PTI کے خدشات کا اظہار کیا۔ کہا کہ بانی PTI نے بھی یہی کہا ہے کہ عدالتوں کو اپنے لوگوں سے بھرا جا رہا ہے۔ ججز کے لیے جو نام تجویز کیے گئے ہیں، PTI کو ان پر شدید تحفظات ہیں۔ دیکھیے فیصل چودھری کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ملکہ کوثر مری سے ملحقہ 3 جنگلات میں آگ لگ گئی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق گھوڑا گلی کمیٹی اور ساملی فارسٹ رینجز کے جنگلات میں آگ لگی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ نے تینوں جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ برطانیہ کی انسداد بدعنوانی کی خاتون وزیر ٹیولپ صدیق
بدعنवानी के संगीन इल्जामात के बाद मुस्ताफी हो गई ट्यूलिप सिद्दीक बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी हैं। उनकी जायदाद के इनकी खाला बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से जुड़े होने के इल्जामात हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो अपने तमाम माली मामलात जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल हुकूमत के लिए उलझन का बाइस बन गई है। 42 साल ट्यूलिप सिद्दीक पहली बार 2015 में बरतानिया की रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी। कौमी असम्बली इजलास में निजी कार्रवाई के रोज अरकान असम्बली के कई बिल्स कार्रवाई के लिए मंजूर कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज किया और ऊ की आवाजें भी बुलंद की, ताहम स्पीकर ने मामूल की कार्रवाई जारी रखी। इसकी तफसील बता रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में निजी कार्रवाई का दिन। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करने की इजाजत मांगी, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक ने इजाजत ना दी। उनके बाद रुकने असम्बली इंजीनियर हमीद हुसैन ने कुरम एजेंसी के हालात पर बात करने की इजाजत मांगी, ताहम उन्हें भी स्पीकर ने सख्ती से मना कर दिया। उसके बाद अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए नारे बुलंद करने लगे। अपोजिशन अरकान ने ऊ के नारे भी लगाए। इस दौरान स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखी। शर्मिला फारूकी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जहेज की मुमानत का बिल पेश किया, जिसे कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। जानवरों की हिफाजत, कौमी कमीशन बराए अतफाल और वफाकी तरक्याती अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली में पेश किए गए, जिन्हें मुतलका कमेटियों के सुपुर्द कर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी और मुनज़्ज़ा हसन का ज़कात व उशर बिल भी मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने एहतजाज जारी रखा और बाद में कोरम की निशानदेही करके वॉकआउट कर दिया। कोरम पूरा न होने पर कौमी असम्बली के इजलास में पहले वक्फा किया गया और बाद में डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत इजलास दोबारा शुरू हुआ तो गिनती करवाई गई। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि ऐवान में 100 से ज्यादा अरकान मौजूद हैं, ताहम उसके बाद इजलास बुध दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में ऊ की आवाज के साथ एहतजाज पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें एहतजाज का ये तरीका पसंद नहीं है। सर आज फिर ऊ का एहतजाज करेंगे? मुझे खुद ये लफ्ज़ ऊ पसंद नहीं है ज़ाती तौर पे। वो लफ्ज़ ऊ निकालता हुआ मुझे खुद अपना आप थोड़ा गीदड़ सा महसूस होता है। क्या महसूस होता है? गीदड़ सा। तो ये ऊ का नारे जो है ना, ये तो गीदड़ लगाते हैं, लेकिन अगर पार्टी कहे कि लगाना है तो फिर तो लगा लेंगे, गीदड़ बन जाएंगे। हंगू की तहसील टल से अशय खुरोनोश दवाएं और दीगर सामान से भरे ट्रकों का दूसरा काफिला कुरम पहुंच गया है। जिला कुरम के लिए 6 रोज के वक्फे के बाद टल कैंट से अशियाई खुर्दोनोश से भरे ट्रकों का दूसरा काफिला भेजा गया। काफिले में 25 ट्रक शामिल थे। 20 गाड़ियां क्लियरेंस न मिलने के बाइस कुरम नहीं जा सकीं। जिले इंतजामिया के मुताबिक माल बरदार गाड़ियां पारा चनार, बुशहरा, अलीजई, बालिश खेल और सदा समेत दीगर इलाकों तक पहुंचाई जाएंगी। शहरियों का कहना है कि पारा चनार के लाखों की आबादी के लिए सामान की 25 गाड़ियां काफी नहीं। ये तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां जो टल में खड़े हैं, बमुश्किल उसमें 25 गाड़ियां आज पाराचनार पहुंची। जो दूसरे गाड़ियां हैं तकरीबन 80 से 85 गाड़ियां, उनको दोबारा वापस कर दिया गया है। और वो गाड़ियां भी अंडों की, मुर्गियों की, पापड़ की, जो काम की नहीं है, उसमें मेडिसिन थी, मेडिसिन को भी उन्होंने वापस किया। उन्होंने कहा है कि मेडिसिन, तेल और ये LPG इनकी बिल्कुल इजाजत ही नहीं है। आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है? जिला करम में 3 माह से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात बरकरार हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात, खुर्दोनोश की कमी, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की किल्लत से लाखों लोग परेशान हैं। मुश्किल वक्त गुजरता है, इंशाल्लाह ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा। तरस रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे। जितनी भी जरूरियात की अशिया है वो बिल्कुल खत्म है। दुकान का खर्चा ज्यादा है। इधर बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके घरों में कुछ भी नहीं है। जिला कुरम में अद्वियात खत्म होने के बाइस मेडिकल स्टोर और प्राइवेट अस्पताल बंद हैं। ताजिरों ने भी हड़ताल कर रखी है, जबकि लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में जारी धरने के बाइस टलता पारा चनार मरकजी शाहराह भी बदस्तूर बंद है। अमन मुआहदे के तहत गुज़िश्ता रोज लोअर कुरम के इलाके बालिश खेल और खारकली में दोनों कबाइल के 2 मोर्चे गिराए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजिरों से लूटमार के बढ़ते वाक़यात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने मोबाइल मार्केट के अतराफ पुलिस को मुसलसल गश्त की हिदायत की है और पुलिस से कहा है कि ताजिरों से लूटा गया सामान बरामद किया जाए।
पाकिस्तान स्ट्राइक फोर्स का तरबियती कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में शुरू हो गया है। एनसीए लाहौर में शुरू होने वाला कैंप साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की निगरानी में 30 जनवरी तक जारी रहेगा, जहां साबिक टेस्ट क्रिकेटर हुमायूं फरत और साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर कामरान साजिद उनकी मुआवनत कर रहे हैं। स्ट्राइक फोर्स कैंप में बुलाए गए 25 खिलाड़ियों को भी इस हवाले से रहनुमाई की जाएगी कि किस तरह प्रेशर में परफॉर्मेंस देनी है और ताकत के साथ जारहाना और तहम्मुल के साथ किस तरह बड़ी क्रिकेट में बैटिंग करनी है। कैंप के मकासद में बैटिंग के मुख्तलिफ पहलुओं को तब्दील करना है, जिनमें हैंड कोऑर्डिनेशन, स्टांस और पावर हिटिंग शामिल हैं। कैंप का दूसरा मरहला मुल्तान स्टेडियम मुल्तान में 1 से 28 फरवरी तक होगा। अभी आपको बताएंगे बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का वफ्द के हमरा दौरे पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात में शराकतदारी को किसी भी बैरूनी रुकावट से महफूज रखने के आज़म का अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल कमरुल हसन की मुलाकात में खित्ते में उभरती सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दामात के जरिए इलाकाई सलामती में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियों को सराहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल उठाया, 9 मई को लोग कोर कमांडर हाउस पहुंच गए, ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है, किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर इसका ट्रायल हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जरूरी नहीं कि गोली चलाई जाए, मगर 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुजाहमत की गई। ख्वाजा हारिस ने कहा, कोई जानी नुकसान ना हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वुसअत दी जा रही है। वजारत दिफा